I welcome you all to my channel। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं धर्मवीर। आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है ज्योमेट्री से, चैप्टर नंबर 6, लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इसमें आज हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है एंगल। व्हाट इज एन एंगल? तो जैसे कि बोर्ड पे मैंने लिखा है पहले, एन एंगल इज formed by two rays originating from the same point। सबसे पहले आपको यह समझना है कि रेज क्या होती है। जैसे देखो, मैं आप बोर्ड पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। दिस इज अ रे, जस्ट लाइक एन एरो। सो रे इज जस्ट लाइक एन एरो which has point of origin and going to in any directions, pointing towards the direction. So this arrow points the direction. So let it write it OA. So this is an array OA, just like an arrow. This may be another ray OB. So when these two rays originating from the same point, that will form an angle. So angle is formed when two rays are originating from the same point. So this is an angle AOB, यानी एक कोण तब बनता है जब दो किरणें एक बिंदु से निकल रही हो, तो उनके द्वारा एक कोण बनता है। तो ये हमारा एक कोण है, एंगल AOB। और इसमें जो दो रेज है वो एक ही पॉइंट O से निकल रही हैं। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज O and the rays are OA and OB। So next definition is arms। The rays making an angle are called arms of that angle। The angle is AOB, but the arms are OA and OB। These two are arms of angle AOB। Next is vertex। So vertex of an angle is the point of origin of the rays। The rays are OA and OB। तो दो किरणें OA और OB जिस बिंदु से निकल रही हैं वो उसका कहलाता है वर्टेक्स, यानी शीर्ष, कोण का शीर्ष बिंदु। तो ये पहली डेफिनेशंस थी कोण के बारे में। यानी एंगल क्या होता है? एंगल दो रेज से बनता है जो कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ एंगल रिक्वायर्स एट लीस्ट टू रेज। सो टू रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एंगल। So let us some more definitions regarding this lesson, these chapters. First is right angle, then acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angles। Listen, so angle whose measure is the angle whose measure is 90 degree, that is the right angle। So this is
AOB is a right angle. So here angle AOB is an acute angle. The angle whose measure is less than 90 degree, that will be an acute angle. So tell me, 70 degree, 80 degree, 91 degree, 100 degree. Out of these, which is an acute angle? So angle 70 degree, 80 degree, these are the acute angle, because these both angles are less than 90 degree. But 91 degree, 100 degree, they are more than 90 degree. These are not the acute angles. Next is obtuse angle. The angle whose measure is above 90 degree, more than 90 degree. But less than 180 डिग्री, यानी वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी अधिक हो। अब देखिए, so angle POQ is an obtuse angle whose measure is 130 degree. So 130 degree is more than 90 degree but less than 180 degree. This will be called as the obtuse angle. यानी अधिक कोण जो है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल straight angle is that whose measure is 180 degree. The angle of measurement 180 degree, that is called the straight angle या रिजु कोण। और ये बनता कब है? आमतौर से कि जब दो रेज which are opposite to each other. So the right angle where straight angle will be formed only when two rays are opposite to each other. So this is a right angle, straight angle और यानी रिजु कोण। तो एक रिजु कोण होता है जिसका माप जो है वो 180 डिग्री हो। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। So this angle is known as a reflex angle because the measurement of this angle is more than 180 degree but less than 360 degree. More than 180 degree but less than 360 degree. That is a reflex action. And the complete angle means the angle of the angle of 360 degree, that is a complete angle. So here both rays overlap each other starting from this point
The second ray also overlap the first ray. The both rays are one above the other. Then both rays are in the same direction and on the same line. So that is a complete angle. The angle of 360 degree is called the complete angle. So we will now take further some more definitions regarding these angles, complementary angles, supplementary angles. Those angles whose sum are equal to 90 degree, sum of two angles is 90 degree. Those angles will be known as complementary angle. Just see 20 degree and 70 degree. These are a pair of complementary angles. Just similarly 30 degree, 60 degree, both having the sum 90 degree. These are also the complementary angles. So those angles are complementary angles whose sum is equal to 90 degree. यानी वो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री बनता हो उनको हम कहते हैं पूरक कोण. उसके बाद होता है सप्लीमेंट्री एंगल. सम ऑफ टू एंगल is 180 degree, then they will be called supplementary angle. यानी वे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो जाता है उनको हम कहते हैं समपूरक कोण, यानी समपूरक कोण. ऐसे कोण जिनका जोड़ दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री आ जाता है, जैसे 70 डिग्री और 110 डिग्री. So this is a pair of supplementary angle, because if we add 70 to 110, that becomes 180 degree. Similarly 90 and 90 degree, this again supplementary angle. Sum of this again 2, that is so 105 and 75. So this is again a pair of supplementary angles. So supplementary angles are those whose sum are equal to 180 degree. So these are two more definitions regarding complementary angle and supplementary angle. Now we take adjacent angle. Let's see. So here I will written two angle AOB, and other angle is angle BOC. These are adjacent angles, यानी संगत कोण. हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं संगत कोण, तो संगत कोण ऐसे कोणों को कहते हैं जिनमें एक बीच में कॉमन भुजा हो और उसका जो शीर्ष बिंदु है वर्टेक्स
the angle which have the same common line, common arm and same vertex. So vertex and a common arm, but the other two non-common arms are on the either side of the common arm. कि एक कॉमन भुजा हो बीच में, कॉमन शीर्ष हो, और जो दो अन्य भुजाएं हैं वो उस कॉमन भुजा के दोनों अलग अलग दिशा में हो, तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल यानी संगत कोण. लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ऐसे कोण को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, यानी रैखिक युग्म. हिंदी में इसे कहते हैं रैखिक युग्म. ऐसे दो कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे या लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं, जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ओ ए and OC are the non-common arm of angle AOB, BOC. So there are two angles, angle AOB and other angle is BOC. यानी दो कोण AOB और दूसरा कोण है BOC. इनमें जो OB है वो कॉमन आर्म है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो O है, यानी वर्टेक्स जो है वो O है, और ये जो OA और OC जो है ये नॉन कॉमन आर्म है. अब जब ये दोनों यानी नॉन कॉमन आर्म when they are opposite to each other, exactly opposite to each other, so that becomes a straight line, means that form a supplementary angle. So this is known as a linear pair of angle. यानी ऐसे दो कोण जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, एग्जैक्टली विपरीत दिशा में हो, तो इस तरीके से बनने वाले कोणों का जो जोड़ा है, युग्म है, उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी रैखिक युग्म. तो यहाँ पर ये एक रैखिक युग्म है, एंगल AOB और एंगल BOC. उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट, हिंदी में कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण. तो इसके लिए अभी आप देखिए फिगर बनाया है हमने. शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं जहां पर दो पेयर, देखो एक तो ये रे है OA, मैं आपको पेयर लिख देता हूं, OA रे है एक OA, इसके अपोजिट कौन सी रे है OC. दूसरा पेयर क्या है OB, और उसके अपोजिट कौन सी है OD. So when there are two pair of opposite rays, तो ये जो रे है OA रे और OB रे, these are opposite to each other, and the other pair is OB ray and the OD ray, these are also opposite to each other. यानी जब हमारे पास किरणों के ऐसे युग्म हो जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो उससे बनने वाले जो कोण हैं उनको हम कहते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर आप देखिए चार कोण बने हुए हैं जिसको हमने लेबल किया है 1 2 3 4. सो दीज आर फोर एंगल फॉर्म्ड बाय two pair of opposite rays. So angle 1, angle 3
a pair of vertically opposite angle. यानी ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल 2 and angle 4, this is again a pair of vertically opposite angles. तो vertically opposite angle तब बनते हैं जब जो रेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हों। दो पेयर कम से कम होने चाहिए, दो पेयर्स अपोजिट रेस के हों, तब जाकर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। एट लीस्ट टू पेयर ऑफ अपोजिट रे, सो देयर मे बी मोर देन टू पेयर, so number may exceed above two rays. So vertically opposite angle will be formed only then when there are more than two or more than two pair of opposite rays. So you must be clear about the vertically opposite angle. Now we take other type of angle. अब देखिए हमारे पास अब ये दो लाइन है, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी। ये हमने यहां पर ड्रॉ किया, एक लाइन ए बी लाइन, अदर इज सी डी लाइन। आई एम सेइंग लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट। ए लाइन एंड लाइन सेगमेंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। A line has both arrow on opposite side. That means that is unlimited. A line segment always represented by limits. So these are two rays, AB rays and other is CD rays. These are parallel. Means they go side by side, straight way, not joining them to each other at any place. These are called the parallel rays. And this ray, ये वाली, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो थी, ये है पैरेलल लाइन, और ये जो हमने तीसरी ड्रॉ की है, ये है ट्रांसवर्सल। हिंदी में यानी ये समानांतर किरणें हैं दो, और ये है तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद करती है, यानी when a transversal intersect two parallel lines, so two parallel lines AB and CD, they are intersected by a transversal. So AB and CD are the two parallel lines, and R is a transversal intersecting AB at point P and CD at point Q. These are the point of intersection. कि जब दो समानांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हो, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर कई कोण बने हैं। अब कोणों को आप देखिए ध्यान से, उनके नाम देखिए, नंबर देखिए, और उनको फिर आपने बताना है कि कौन सा कोण किस टाइप का है। अब देखिए यहाँ पर 8 कोण बने हैं, जिसको हमने लेबल किया है 1 2 3 4 5 6 7 and 8। Now say angle 4 and angle 6.
एंगल जो 4 है वो क्या है, पी ए, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट पी ए के नीचे है, और एंगल जो 6 है वो क्यू डी लाइन के ऊपर है। तो एक एंगल लाइन से नीचे, एक लाइन से ऊपर, यानी इन दोनों समांतर रेखाओं के ये बीच में पड़ रहे हैं, यानी दे आर द एंटीरियर एंगल lying between the two parallel lines, but they are opposite the transversal, one on the left side, other on the right side, यानी एक कोण जो है वो बाईं दिशा में है और दूसरा दाईं तरफ है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं पेयर ऑफ एंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी ऐसे कोण जो दो समांतर रेखाओं के बीच में हो और एक तिर्यक रेखा के दाएं और बाएं दिशा में हो, तो उनको हम कहते हैं आंतरिक अंतःकोण, आंतरिक एकांतर कोण का योग। दिस आर अ पेयर ऑफ एंटीरियर एंगल। अब आपने और ध्यान से देखकर बताना है कि क्या इस तरीके का कोई और भी हमारे पास पेयर है, तो वो है एंगल 3 and angle 5. So angle 4 and 6, these are a pair of, this is a pair of anterior alternate angle, and other pair is angle 3 and angle 5. This is again a pair of anterior alternate angle. Now see angle 1 and angle 7. कोण 1 और कोण 7। अब ये देखिए कि ये रेखा है तिर्यक रेखा, यानी ट्रांसवर्सल। एंगल 1 जो है यानी ये वाला इसके लेफ्ट साइड पे है, और एंगल जो 7 है वो इसके राइट साइड पे है। सो वन ऑन द लेफ्ट साइड, अदर ऑन द राइट साइड। सो दीज आर ऑन द अल्टरनेट साइड, बट दिस एंगल लाइज अबव द ओ ए सेगमेंट। So this AB लाइन के वो ऊपर है, और ये जो एंगल 7 है वो CD लाइन के नीचे है। दोनों एंगल जो है वो इन समांतर रेखाओं के बीच में ना होकर बाहर की तरफ है। तो इसलिए ऐसे एंगल्स को कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1 और एंगल 7। तो ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इसी तरीके से अब आप दूसरा देखिए कौन सा है, एंगल 2 एंड एंगल 8, यानी ये एंगल और एंगल 8 आल्सो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इनकी विशेषता क्या होती है कि अल्टरनेट एंगल्स दे आर इक्वल, मे बी एक्सटीरियर मे बी इंटीरियर। सो इंटीरियर pair of anterior alternate angles, so anterior alternate angle as well as exterior alternate angles, they are equal in measurement. तो ये थे हमारे alternate angle। अब आती है हमारी corresponding angles। तो आप देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5। Similarly, angle 2 and angle 6. So angle 1 above the line AB, angle 5 line above the line CD, यानी ये कोण AB रेखा के ऊपर, और एंगल 5 जो है वो CD रेखा के ऊपर, यानी दोनों जो है एक ही तरफ है, यानी वो भी ऊपर है वो भी ऊपर है। साथ ही इस तिर्यक रेखा के वो भी इस तरफ है और ये भी इस तरफ है। एंगल 1 और एंगल 5 लाइन ऑन द सेम साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। सो दीज आर नोन एज द corresponding angle. So corresponding angle are those which
are lying on the same side of the transversal, either on the left or on the right, or lying either above or lying either below. So either above or below. So maybe anterior, maybe exterior. So one angle 1 and angle 5, this is a corresponding pair of angle. Again 2 and 6 are the pair of corresponding angle. So similarly angle 4 and angle 8, angle 3 and angle 7. So there are 4 pair of corresponding angle. तो इस तरीके से corresponding angle को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि corresponding angle हमेशा एक ही दिशा में होते हैं, ट्रांसवर्सल के और समांतर रेखाओं के, और ये भी बराबर होते हैं. तो corresponding angle are always equal in measurement. जैसे कि alternate anterior angle या exterior alternate angle बराबर होते हैं, इसी तरीके से corresponding angle भी, यानी संगत कोण भी, जिनको हम हिंदी में संगत कोण कहते हैं और इनको एकांतर कोण कहते हैं, तो ये माप में बराबर होते हैं. अब देखिए यहाँ पर कुछ और जो अभी हमने इससे पहले किया था, बताया था आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब यहाँ पर आप देखिए क्या इस तरीके के एंगल हैं. सो एंगल 2 एंड एंगल 4, angle 1 and angle 3, these are vertically opposite. Similarly angle 5 and angle 7, angle 6 and angle 8, these are pair of vertically opposite angle. यानी vertically opposite angle अभी हमने पीछे बताया था कि यानी जब pair of रेज, अपोजिट रेज अगर हमारे पास है तो तब बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बने. अब एक टाइप और रहती है, वो है एंटीरियर पेयर ऑफ एंगल. एंटीरियर पेयर ऑफ एंगल जैसे so angle 3 and angle 7, sorry, angle 6. Just see angle 3 and angle 6. They are on the right side of this transversal. यानी ये जो ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, इसके दोनों एंगल जो है वो किधर है? दाईं तरफ है. और ये जो AB रेखा थी और दूसरी थी CD, पैरेलल लाइन जो समांतर रेखाएं थी, इन दोनों के बीच में है. So these are on the anterior side. दो रेखाओं के बीच में है, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है. तो ऐसे एंगल जो है कैसे होते हैं कि एंगल these are not equal in measurement, कि ये बराबर नहीं होते हैं, इसमें मेजरमेंट में बराबर नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं कि इनका जो जोड़ है वो these are supplementary. So anterior pair of angles are supplementary. मीन्स इनका जो जोड़ है वो कितना होता है? 180 डिग्री. सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इसी तरीके से अब आप और दूसरे देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगेन 180 डिग्री. तो ये भी जो है कैसे पेयर है हमारा? ये भी एंटीरियर पेयर ऑफ एंगल है, क्योंकि ये भी जो है इन दोनों भुजाओं के बीच में है. दोनों रेखाओं के AB और CD
रेखाओं के बीच में है और इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, एक ही साइड में। तो ये भी क्या है, एंटीरियर पेयर ऑफ एंगल है, और ये हमेशा क्या होता है, इनका जोड़ जो है 180 डिग्री के होता है। अब हमारे पास ये था कि जब दो समांतर रेखाएं, यानी ये AB रेखा CD रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो हमारे पास रूल क्या है कि एंटीरियर पेयर ऑफ एंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल इन मेजरमेंट, एंड द इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स दे आर सप्लीमेंट्री। तो ये तब है कि जब पैरेलल लाइंस को हमें दे रखा हो क्वेश्चन में कि हमें दो पैरेलल लाइन दी गई हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उस तरीके से बने हुए एकांतर अंतः कोण और संगत कोण जो है माप में बराबर होते हैं। लेकिन इसके अगर अपोजिट दे रखा हो, इससे उलट दे रखा हो कि ये बताया गया हो कि यदि एंटीरियर पेयर ऑफ एंटीरियर alternate angles are equal, prove that the lines intersected by transversal they are parallel. So parallel क्या होगा कि अगर सपोज हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एंगल 3 and एंगल 5 are equal in measurement, so it means that these are the alternate angle and given these are equal in measurement. So line AB and CD, we don't know are they parallel or not, but the given is angle 3 and angle 5, which are alternate angle, they are equal in measurement. Prove that these AB and CD are parallel. So this is a converse of the above said, कि when two lines are intersected by one transversal, the pair of interior angles are equal. Now we are saying the two angles are alternate and they are equal in measurement, so to prove that the lines are parallel. So this is also true. So these are some points to be remembered by you during the course of exercise, solving the questions regarding exercise. So these all concepts will be used. So आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना आपको बताया गया है इसको ध्यान से समझें, इसको स्टडी करें पूरी तरीके से, क्योंकि जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आगे के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको समझने से पहले आप ये जो डेफिनेशंस हैं इनको अच्छी तरीके से समझ लें। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, जो अभी नए हैं इस चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, एडिशनल रिक्वायरमेंट आपको अगर लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें, कमेंट कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।